Okay, so ladies and gentlemen, welcome to the class. Not only to welcome to the class, but welcome to a new semester and welcome to a new subject. And the only thing which is bad, the instructor is the same. The only thing is issue is this one. Otherwise, everything is new. तो चले मैं ये नहीं कहूंगा स्टूडेंट आल्सो आर द सेम, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। एनीहाउ, तो सबसे पहले अल्दो के शायद मुझे ये काम प्रीवियस सेमेस्टर में करना चाहिए था कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर यू हैव चोजन द कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट आर माय गोल्स, व्हाट आर माय टारगेट्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं होता। 4 साल पूरे करने के बाद भी नहीं पता होता। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर माय गोल्स and what fields I will be touching. I'm using the word touching. Intentionally, I'm using this word. So, ladies and gentlemen, if I can say your one of the job is to study the communication, the field of communication. That fields are, you can add something further. कहने जी ये भी होता है या होना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन। जैसे आपने प्रीवियस सेमेस्टर में कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा, इस सेमेस्टर में आप डीसीएन पढ़ रहे हैं, अगले सेमेस्टर में आप नेटवर्क सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़ेंगे। हो सकता है कि 8वें सेमेस्टर में कोई और भी हम आपको नेटवर्किंग रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफर कर दें, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट की, इंडस्ट्री की क्या डिमांड है। अगर एक तरफ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं तो व्हाई नॉट वी शुड ट्रेन अवर पीपल इन अ वे कि जी वो वहां पे कंज्यूम हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, फायदा उठा लें। सो वन ऑफ द एरिया इज कम्युनिकेशन। The second is signal processing. Like again in the last semester, probably not last term, but in the third semester, probably third or fourth, you studied the signal system. Then after the signal system, in the previous semester, you talked about or you studied about the DSP, digital signal processing. Then probably in the coming semester, you may be offered digital image processing, because the thing difference is only signal and image is also a signal, but it becomes specific only to the image. And the same specialization in the depth, you may call it the computer vision, because again you are using a vision. Vision means images. So that covers your signal processing side. Then is the, ladies and gentlemen, hardware design, starting with probably third semester, where we start with the DLD, digital logic design, MBSD, advanced hardware design, embedded systems. All are for a single reason, that the student should have an idea of the hardware design. Then, ladies and gentlemen, programming, very important, another field, where you, either I may call it a field, or may I call it that it is helpful for other fields. But important, like you started with the basic programming, you go to the OOPS, object-oriented programming, maybe system programming, maybe operating system. In all the cases, what you are doing, you are coding. And finally, you may have a few subjects in the area of AI and data science. So the 4-year plan is to train our students in these 5, not to train, but I will say to give them a touch of all these areas. But our engineering demands is that touch is not enough. You should have a solid understanding of knowledge and skills. Knowledge and skills, that is the requirement. अगर आपके पास ये नहीं है, मसला है।
तो अभी हम देखेंगे कि क्या वाकई, मतलब दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक जो कि आप लोग कहते हो कि जी इंजीनियरिंग तबादा, नौकरियां निश्ता. So all is that is your one way to look at the situation, and the other one is no, there are a lot of opportunities, but you are not trained to get advantage of these opportunities. So ladies and gentlemen, अगर मैं इस चीज को एज एजुकेशनिस्ट देखूं तो इट लुक्स टू मी समथिंग लाइक ए हॉरिजेंटल बार वेयर आई हैव द टच ऑफ communication, signal system, in signal processing, hardware design, programming, AI, data science, blah blah. But as I said, they are definitely, as an engineer, you must have a know-how of all of these fields. We understand. उसका एक रीजन है. रीजन ये कि अगर हम एक ही फील्ड पकड़ के उस पर लग जाते और अगर खुदा ना खास्ता आपका उसमें इंटरेस्ट ना होता तो मसला बन जाता. तो जी ये कम्युनिकेशन सिर्फ पढ़ाते हैं और उसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था. ये सिर्फ सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ाते हैं और मेरा तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था. इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, हम आपको एक टी मॉडल में लेकर आना चाहते हैं. टी मॉडल का मतलब है कि बाकियों को तो आपने सरफेस से देखा, लेकिन किसी एक फील्ड, एक या दो फील्ड में आप डेप्थ में चले गए. अब वो इन पांच में से कोई भी हो सकता है. इट डिपेंड अपॉन योर चॉइस. अब क्योंकि जब आप इंडस्ट्री को, या तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं एज इंजीनियर फॉर यू, इधर यू मे ज्वाइन द इंडस्ट्री, or you may join the academia, or you may join the research scholar. So in all the three cases you need in-depth knowledge and skills. So that's the reason in one of the field you need to dig out and become an expert of that. Clear? Now the question is, which one? And sorry, I don't have the answer to this. जैसे कल मैंने, क्योंकि इस बार मैं फोर्थ को भी पढ़ा रहा हूँ, सिक्स को भी पढ़ा रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि जी कौन सी फील्ड, तो मैंने कहा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. तो कहता है सर कैसे पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट किधर है. वैलिड क्वेश्चन है. मैंने नहीं कहा, मैंने उसको कुछ नहीं कहा कि भाई क्यों तुम ये पूछ रहे हो. जस्ट आपको बता रहा हूं कि हिज क्वेश्चन वाज सिंपल कि जी हाउ आई विल कम टू नो कि इन विच ऑफ दीज 5 फील्ड आई एम इंटरेस्टेड. इवन अगर मैंने कहा कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, इसमें आपका साइबर सिक्योरिटी भी आ जाता है, डिजिटल फोरेंसिक भी आ जाता है, एथिकल हैकिंग भी आ जाता है, नॉन एथिकल हैकिंग भी आ जाता है, थ्रेट इंटेलिजेंस भी आ जाता है. तो न्यूमरस फील्ड्स आर देयर. बट वंस यू go into that field, enter into that field, that then we will allow you to swim as much as you can and explore. तो द आंसर वाज कि जी कैसे आपको पता चलेगा भाई. एक चीज मिसाल के तौर पे, अगर मुझे टीचिंग अच्छी नहीं लगती तो ये 3 घंटे तो क्या 3 मिनट भी क्लास में ऐसे 40 शहजादों और शहजादियों के सामने बैठना इज ए वेरी वेरी टफ टास्क. बट इफ यू लव इट देन 3 तो क्या 6 भी हो तो डजंट मैटर. आई कैन गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब इलेक्शन होता है तो हमारी याद आ जाती है कि जी आप ड्यूटी करें. तो वहां पे पुलिस वाला था, तो मैंने उसे कहा कि भाई कैसे लग रहा है आज का दिन. कहते जी दाखो डेरा डेरा पा आराम वाला रस दे. तो ये क्या कह रहा है आराम वाला. मेरा तो दिल तंग हो गया यहाँ पे कि कोई कहता है जी वोटर को यूं करो, कोई कहता है यूं करो, हर एक को खुश रखो क्योंकि अलग पार्टियां हैं, कोई भी मसला ना बने. तो कहता है नहीं, हम तो जब उन पे जाते हैं जलसों वगैरह पे या कहीं एहतजाज होता है तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा भारी वो उठाना पड़ता है, अपने आप को भी बचाना पड़ता है, दूसरे को भी मारना पड़ता है. तो दैट इज ए टफ टाइम. ये तो बड़ा ही लाइट है कि आप अंदर हम बैठे हुए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, नो प्रॉब्लम. लेकिन दैट वाज टफ फॉर मी बट नॉट टफ फॉर हिम. लेकिन अगर मैं उसको कहता कि आओ क्लास में 40 अगेन बादशाहों और मलकाओं के सामने बैठ के एक्सप्लेन करो चीजें और उनके सवालों के जवाब दो,
क्योंकि उसकी नेचर में जवाब देना नहीं है। उसकी नेचर में ये जो मैं कह रहा हूं, पुलिस वाला है ना, या तो अपनी बात कहेगा, मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो डंडा मारेगा। टीचर ये नहीं कर सकता, उसकी माइंड सेट इज डिफरेंट। सो हियर इट इज दी कि आपने किस एरिया में लेना है, ये आपका काम है कि आप एक्सप्लोर करें अपने आप को, क्योंकि टाइम आपके पास सिर्फ 1.5 ईयर रह गया है। छठे सेमेस्टर में पहुंच गया ना, छठा, सातवां, आठवां। तो अगर इसमें भी आप नहीं अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, तो फिर वो काम होगा कि आज से तकरीबन 2 साल पहले आई वॉज वर्किंग विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और काम मेरा ये था कि मैं मार्केट में जो भी बेरोजगार इंजीनियर्स हैं उनको अपने साथ लगाऊं, और उनको पैसे जो है पीसी देगा और ट्रेनिंग मैं दूं, ताकि वो 6 महीने के बाद कहीं जॉब के काबिल हो जाएं। तो एक स्टूडेंट कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से था, और वो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया। तो मेरा एक वैलिड क्वेश्चन हर एक से ये होता था कि जेंटलमैन, आपका शौक क्या है? क्योंकि देखना ये है कि भाई उसका शौक और मेरा शौक मिलता है तो फिर तो मैं उसको हेल्प आउट करूंगा, और अगर नहीं मिलता तो मैं उसे कहूँ खुदा हाफिज, कहीं और करो। तो उसने मुझे कहा जी वेब डेवलपमेंट। मैंने अपने पास नोट कर लिया कि जी ये जेंटलमैन इज इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट। अगले दिन सुबह सुबह वो आ गया कि जी वो सॉरी, ये काम कर दें, मेरा वो वेब डेवलपमेंट काट के और साइबर सिक्योरिटी कर दें। आई वाज एस्टॉनिश्ड कि आखिर एक रात में हुआ क्या है, दुनिया में तो कोई ऐसी चेंज मेजर नहीं आई। तो मैंने कहा भाई आपको कैसे एक रात में डिफरेंस ऐसा फील हुआ कि दिस इज, कहता है मेरे टीचर ने मुझे कहा है कि दा दा फील डेयर हॉट दे, तो बस दा हो गई। अब यहाँ पे आप पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 साल की डिग्री ले ली, लेकिन ही नेवर थॉट अबाउट कि मुझे करना क्या है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सोचें कि आपने करना क्या है। अब कैसे पता चलेगा? एवरी टीचर जो जिस फील्ड का भी आए, हार्डवेयर का आए, प्रोग्रामिंग का आए, एआई का आए, जो भी आए आपके सामने, उससे कहें जी मुझे बताओ कि इसमें मेरे लिए क्या है। एंड देन आप जब एक्सप्लोर करोगे तो यू विल फाइंड कि जी यहां मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अदर फील्ड्स, हियर आई कैन फील मोर कंफर्टेबल। अब अगर मैं आपको अपने फील्ड के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में या नेटवर्किंग के बारे में बात करूं, तो मेरा ख्याल ये है कि जी, मेरा ख्याल ये है कि अगर मैं कहूं, एक तो सबसे पहले तो मेरा काम ये है कि मैं ये एक्सप्लेन करूं कि कम्युनिकेशन कहते कैसे हैं। द फर्स्ट टास्क इज व्हाट इज कम्युनिकेशन, एंड द आंसर इज if I open one of my slide, just to show you कि कम्युनिकेशन है क्या। शैनन, अ बिग नेम इन कम्युनिकेशन, वो कहता है कि कम्युनिकेशन क्या है कि अगर एक पॉइंट पे, विच में आई कॉल इज सोर्स, सोर्स पे अगर कोई भी सिग्नल जनरेट हो और वो सिग्नल किसी भी तरीके से डेस्टिनेशन पे यानी पॉइंट 2 पे एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली पहुंच जाए, इसका मतलब व्हाट हैज बीन अचीव्ड, कम्युनिकेशन। तो अगर यही चीज मैं यहां पे आपके सामने रख दूं, जी ये है द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है? इज दैट ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। कहां पे रिप्रोड्यूस होता है? डेस्टिनेशन पे। जैसे इस वक्त अगर मैं बोल रहा हूं तो आई एम ए सोर्स, और जेंटलमैन एट द बैक अगर मुझे सुन रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है? द सेम थिंग इज बीइंग रिप्रोड्यूस्ड। इसका मतलब कम्युनिकेशन यहां पे अकर हो रही है। अब बाहर जगहों पे एग्जैक्टली वही चीज चाहिए होती है, यानी एक चीज, एक बिट का भी डिफरेंस बर्दाश्त नहीं हो सकता। और बाहर जगहों पे बिट्स तो क्या, बाइट्स का भी अगर आगे पीछे हो जाए तो स्टिल इट विल वर्क। जैसे मिसाल तो पे वॉइस है,
वॉइस में अगर पूरा फ्रेम भी गिर जाए तो स्टिल इट कैन वर्क। वीडियो में अगर पूरा फ्रेम भी गिर जाए तो इट इट कैन वर्क। लेकिन अगर आई एम अपलोडिंग डाउनलोडिंग ए फाइल, एफटीपी, नो। तो एग्जैक्टली, तो यही उसने शैनन ने कहा अपने मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में कि जनाब व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट ऑफ रिप्रोड्यूसिंग वन पॉइंट एट वन पॉइंट, either exactly or approximately a message selected at another point. Another point is, as I wrote here, sender or source. Sender कुछ चीज सेलेक्ट करेगा यानी भेजेगा, और दूसरा पॉइंट यानी डेस्टिनेशन पे वो चीज एग्जैक्टली और अप्रोक्सीमेटली रिप्रोड्यूस हो गई। दैट इज कम्युनिकेशन। इसका मतलब बेसिक तो ये है, लेकिन ये बेसिक दूसरे एरियाज में भी अपना इंपैक्ट रखती है। मिसाल के तौर पे क्या मैं कह सकता हूं कि अ जेंटलमैन और लेडी कैन डू रिसर्च बट he or she will never use the internet? Never possible. ये तो बिल्कुल उसी तरह कि मैं कहूं कि एक साहब पूरा एक साल खाना बना नहीं खाएंगे लेकिन जिंदा रहेंगे। नेवर पॉसिबल। इसी तरह अगर एजुकेशन को अगर आप देखें तो हमारे वक्त में होता था कि हमें कहा जाता था कि अगर इफ यू हैव ए प्रॉब्लम गो टू द लाइब्रेरी एंड सर्च सम बुक। लेकिन जब हम इस सीट पे आके बैठे तो हम कहते थे स्टूडेंट को गूगल इट। एंड नाउ व्हाट यू से, आप लोगों क्या जी, देयर आर वेरियस एआई टूल्स like ChatGPT, like Gemini and others. Go and search there and get your answer. Understand it. इसका मतलब है कि एजुकेशन इन सब के पीछे, whether it is Google, Bing, any search engine, plus these AI tools, can they work without networking? And the answer is no. And the answer is no. इसका मतलब है कि एजुकेशन पॉसिबल नहीं है, रिसर्च पॉसिबल नहीं है, इनोवेशन पॉसिबल नहीं है विदाउट नेटवर्किंग। इसी तरह इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ योर बिजनेस कम्युनिटी और इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री और द जीडीपी ऑफ द कंट्री, तो यू विल अगेन रियलाइज दिस फैक्ट कि आज में मिसाल के तौर पे इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ Amazon और such companies, even if you take the example of smaller companies in which are local in Pakistan, but I give you the example of the international brands like Amazon or like Alibaba and others, can they work without the networks? Can they produce such a huge impact on their economy? Never possible. So again it shows that economics of a country, the GDP of the country depends upon the networking. Now, if I compare these two again and look at whether a nation can survive, even I am using the word survive, without education and without business, and again the answer is no. That's the reason our holy prophet once said that if you have to go to China to learn knowledge, you can. अब इसका वजह क्या थी, चाइना क्यों कहा? One of the reason definitely is far away. And far away, China was never, इसलिए नहीं कहा कि China was center of learning, ऐसा नहीं था, लेकिन इसलिए कहा कि इट वॉज फार अवे। इसका मतलब कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो अगर ये तकलीफ भी हो तो इसका मतलब है कि आपको ये तकलीफ बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, तो उससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। द नेक्स्ट थिंग इज ऐसन कि अगर किसी भी मुल्क की, और सेकंड थिंग यहां पे एक और चीज भी, शायद यू मे नॉट एग्री विद मी बट एंड यू मे एग्री एज वेल। इसका मतलब वहां पे कोई कुरान के हाफिज नहीं बैठे हुए थे जो आपको कुरान पढ़ाएंगे, जो आपको सुन्नत हदीस पढ़ाएंगे, फिका पढ़ाएंगे। नहीं, चाइना में ऐसा कोई भी वो नहीं था। इसका मतलब है कि कोई भी इल्म है, मत डरो, ग्रैब इट, वेदर एंड वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको इस्लामी कहते हो कि नहीं कहते हो। इल्म तो सारा का सारा ही इस्लामी है, क्योंकि हमें तो कहा गया पढ़, पढ़ के आगे कुछ और कहा गया था।
पढ़। तो हर जो चीज पढ़ो, नीयत सिर्फ रखनी है कि मुझे कहा कि मेरे पैगंबर को कहा गया कि पढ़, तो मैं पढ़ कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या क्या गलती है? एनी हाउ, तो मेरा कहने का इसी तरह अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो कोई भी नेशन तरक्की, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, योर पासपोर्ट एंड यू हैव ए बेटर रेपुटेशन, रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड और द जापानीज। आपके अपने बंदे ने खुद ही कहता है नहीं मेरी नहीं है, जापानियों की है। व्हाट्स द रीजन? दे हैव द एटॉमिक पावर, दे हैव द एटॉमिक पावर, नो। As compared to them, Russia at what that time was called the USSR. They are and they were atomic power, missile power, the better, much better intelligence. बट टुकड़े टुकड़े हो गया। इसका मतलब है कि ये चीज नहीं है जो मुल्कों को या कौम को मजबूत करते हैं। कौन करता है? इकोनॉमिक्स करता है। इफ यू हैव मनी यू आर रिस्पेक्टेबल। तो जेंटलमैन यहां से पता चला कि और इन दोनों के पीछे क्या है? नेटवर्किंग है। इन द प्रेजेंट एरा इन दोनों के पीछे नेटवर्किंग है। नेक्स्ट मैंने यहां पे लिखा एंटरटेनमेंट। आज से कई साल पहले, मे बी 30-40 years बैक, रेडियो वाज द एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। फिर रेडियोज आपके घर से भी निकल गए और आपकी गाड़ियों से भी निकल गए, उसकी जगह टीवी ने ले ली। लेकिन आई डोंट नो वेदर इट इज सेम फॉर मी एज वेल, जैसे आपके लिए मेरे लिए भी वही है। फॉर मेनी मंथ्स आई हैव नेवर सीन अ सिंगल पिक्चर ऑन द टेलीविजन। बल्कि मैं चंद दिन पहले सोच रहा था कि मैंने घर के लिए ट्रिपलेट लिया हुआ है। ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है सर? इंटरनेट, फोन एंड टीवी, इसको कहते हैं ट्रिपलेट। तो मेरे तो टीवी के साथ उसकी केबल भी नहीं लगी हुई। देखेंगे तो उस वक्त केबल तो लगाएं, केबल ही नहीं लगी हुई। इसका मतलब कोई भी नहीं देखता, क्योंकि इंटरटेनमेंट टीवी से निकल के मोबाइल पे आपके आ गई है, टैबलेट पे आ गई है, लैपटॉप पे आ गई है। यानी कि इस पर आ गई का मतलब इसके पीछे क्या है? तीनों के पीछे नेटवर्क है। तो अगेन एंटरटेनमेंट इज प्योरली ऑन हियर। अगेन मतलब इतना हो गया है कि अगर आपके घर में कोई और चीज खराब हो जाए यू कैन बेयर इट, लेकिन अगर इंटरनेट खराब हो जाए नॉट एक्सेप्टेबल। ना आप कहते हैं पढ़ाई होती है फिर मुझसे, ना मुझसे दोस्तों से बात होती है, ना कुछ होता है। इसी तरह इंफॉर्मेशन, मैंने अभी बताया कि हमारे वक्त में एंटरटेनमेंट वाज, इंफॉर्मेशन वाज बेस्ड ऑन लाइब्रेरीज या इंफॉर्मेशन। यहां से मुराद हम कह रहे हैं कि भाई आपके आसपास क्या हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या हो रहा है। तो प्रिंट मीडिया वाज। आज आपने कितने टाइम हो गया अखबार कभी देखा है? हाथ लगाए अखबार देखते हो? नहीं, कहाँ पे? प्रिंट में खरीदते हैं। तो बड़े कम लोग हैं जो कि अखबार अब देखते हैं या बेच। अब पैसे पहले हमें याद है कि कई दुकानों पे अखबारों की वो मौजूद होती थी, लोग खरीदते थे। लेकिन रोजाना बाद लोगों ने घरों पे लगाए होते थे, सुबह सुबह साइकिल पे या उस पे बंदा आता था और आपके घर पे ड्रॉप करता था। अब नहीं है भाई, बिकॉज यू नो, जस्ट junk.com लिखूं, nation.com लिखूं, बीबीसी लिखूं, वट एवर लिखूं, मिल जाएगा। तो वाई, तो इसमें इंफॉर्मेशन भी इधर ही है। फिर हमने बात की अबाउट द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या चीज चाहिए? ऑटोमेशन चाहिए। ऑटोमेशन में क्या चीज चाहिए? मे बी सम कंट्रोल ओवर ऑल दी पार्ट्स। Again, what you need there? A network which will control it. Software will control it. Even you want to optimize different procedures. Like, for example, your admission in the university. Now you don't need to come to the university, get a form,
prospectus, fill it back, give it back to the management here, and wait for the a day and come here and see on the notice board, oh, my name is there. All is now is digital, is on the internet. Again, computer network means. Even if I give you the example of your billing, a few years back, you can ask your parents कि जब लास्ट डेट होती थी तो लंबी कतारें, लॉन्ग क्यूज, एंड स्पेशली इन जुलाई एंड अगस्त, वेरी वेरी हैक्टिक. लेकिन करना पड़ता था. पता होता था कि नहीं करेंगे तो बिजली भी कट जाएगी, गैस कट जाएगी, फोन कट जाएगा. जुर्माने के बाद भी तो कटता था ना. मैं भी लोगों के फोन बंद करता था, मुझे भी याद है. क्या फरमा रहे हैं? ये आपने कोई अच्छा जमाना सोचा होगा जब व्हेन आई वाज इन पीटीसीएल, अगर कोई एक खास टाइम जो कि ज्यादा से ज्यादा 60 डेज के बाद तो हम काट देते थे. 60 दिन के दी खत्म, हम कहते हैं फाइनली क्लोज हो गया है. तो इसलिए दुआएं मिलती थी. तो बात कहना कोई कंपनी चाहती थी कि उनको उनका रेवेन्यू मिले. नहीं आओ. तो बात हम कर रहे थे कि अब देखें ऑटोमेशन हो गई, ऑप्टिमाइजेशन हो गई, कि आप घर पे बैठे हुए रात के 12 बजे भी इजी पैसा से या कि अपने बैंकिंग से चीजें इधर उधर कर लेते हैं. इसी तरह अगर कोई बैंक आपको ये कहे कि जी मैं बहुत अच्छा बैंक हूं लेकिन मैं आपको ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं देता, आप शायद उसके बाद अपना अकाउंट ही रखना पसंद नहीं करेंगे. तो मेरी सारी बातों से ये पता चला, इवन अगर मैं इसके अलावा आपके साथ एयर ट्रैवल की बात करूं तो आपको तो ये लगता है कि भाई पायलट साहब सारा कुछ कर रहा है, लेकिन उस पायलट साहब के पीछे से आप उसके जो ट्रैफिक कंट्रोल का नीचे अर्थ पे बैठा हुआ स्टाफ है वो हटा दें, ना वो जहाज ऊंचा कर सकेगा और ना उसको लैंड करवा सकेगा. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द नेटवर्किंग, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, दैट वी हैव अ लाइफ लाइक दिस. क्लियर एवरीवन? अब क्वेश्चन ये है कि जी इफ यू हैव अ क्वेश्चन तो बी बोल्ड एंड आस्क. अपने साथ अब खुद अपने आप को सुनाने का कोई फायदा हरगिज नहीं है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा कि जी इस वक्त दुनिया के अगर आप चेक करें तो यू हैव अराउंड 8 बिलियन डिवाइसेस, 8 बिलियन पीपल, 8 बिलियन पीपल. बट द डिवाइसेस नंबर इज, yeah, like your laptops, like your smartphones, like your tablets, they are around 22 billion. इसका मतलब है कि हर बंदे के पास तकरीबन 3 डिवाइसेस. And expected is that in the coming 10 years, which will be a decade, this number might reach to 50 billion. अब यहां पे पता चलता है कि 22 और 50 में तो कितना बड़ा फर्क नहीं है. स्मॉल डिफरेंस, इज इट? इमन बिलियंस है. 28 बिलियन बढ़ जाएगा. इसका मतलब क्या है कि यहां पे आपको आईओटीज का और आईओईटीज का की वजह से दिस नंबर विल इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 28 बिलियन. अगर मुझे 28 बिलियन और ऐड करना है इसमें तो मुझे क्या चाहिए? मुझे वन ऑफ दी थिंग, आपने कहा कि जी मुझे स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग चाहिए, मैंने कहा मुझे न्यू इनोवेशंस चाहिए. बाय न्यू इनोवेशंस मींस कि अगर टुडे if I want, I can get, for example, 1 gigabit per second bandwidth at my home or even more. लेकिन probably after 10 years, 1 billion will be considered as peanuts. लोग कहेंगे ओए 1 बिलियन 1 गीगाबिट लिया हुआ है, ये तो बच्चे भी नहीं रखते. क्यों आप ये बात क्यों नहीं? when we started तो हमारे पास 56K का मॉडेम होता था. 56K का 56K का मॉडेम, और हमें हार्डली बहुत अच्छी लाइन हो तो 6-7 किलोबिट पर सेकेंड, और हम इस पे खुश थे.
तो इसी तरह जैसे अभी आपको लगता है कि 6 to 7 किलोबीट पर सेकेंड तो इज नथिंग, इस तरह आपसे 10 साल बाद लोग समझेंगे कि जैसे अभी आप लोग लेते हो जी मेरे घर में कितना है, 20 मेगाबिट पर सेकेंड है, 30 मेगाबिट पर सेकेंड है एट द मोस्ट। ये आपको लगेगा कि दे आर लाइक 3 to 6 to 7 किलोबीट पर सेकेंड, बिकॉज द एप्लीकेशंस will need more bandwidth to work, more capacity to work. That's the reason I'm saying we may need some other medias or some other protocols, or in short I can say we may need new innovations. Then क्या आज का जो मेरा एनआईसी कार्ड है, जो अभी अगर मुझे मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूं तो मेरे इस डिवाइस के अंदर एक कार्ड लगा हुआ है जिसको कहते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नाउ दैट इंटरफेस कार्ड, लेट इट बी, अगर मैं बता दूं आई डू आल्ट कंट्रोल डेल and I go to the task manager and I go to the performance. Yeah, I go to the performance. Yeah, and I go to the Wi-Fi. What you can see here, 802.1.11 AC. This is somewhat 2019 technology, 2019 approximately, and can support around 1.3 gigabit per second. From today's perspective, very nice. Like maybe after 10 years, probably this will be considered as nothing. Even if I give you the example of the same technology, which is Wi-Fi, 802.11 is the standard name given by IEEE. Ladies and gentlemen, it started in 1999 with a bit rate of only 1 kilobit per second. Then it was classical 802.11. Then came 802.11b, 802.11b, and it provided you 11 megabit per second. Then 802.11a, and it gives you 54 megabit per second. Then again 802.11g, again 54 megabit per second. So what is happening? From 1 mega to 54 mega, millions का difference है. तो अगर आज we are at somewhere in geeks, so after 10 years you can expect it will be multiple geeks. You got my point? क्यों जी नहीं समझ आ रही तो बात करें. नहीं समझ आ रही मेरी बात? आज हम जस्ट इंट्रो कर रहे हैं कि पता तो लगे कि हमारी हमारी हैसियत क्या है, अगर हम यहां रहें या ना रहें. वी नीड टू डिसाइड. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है कि अगर इसका मकसद क्या है, हार्डवेयर इससे ज्यादा, इस टेक्नोलॉजी का हार्डवेयर इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता. इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब है कि अगर मुझे लेट इट करें कि 54 मेगा की बजाय 54 गीगा चाहिए, तो आई डेफिनेटली दिस हार्डवेयर विल नॉट वर्क. व्हाट आई नीड, न्यू हार्डवेयर. I need a newer hardware which will be able to support 54 gig then. That's the reason I have written here. I need new hardware. अगर हार्डवेयर न्यू है तो मुझे उसके लिए सॉफ्टवेयर भी नया चाहिए होगा. आज का सॉफ्टवेयर विल नॉट बी एबल टू वर्क विद दैट हार्डवेयर. जैसे एक वक्त था कि मैक्सिमम पार्टीशन, एक वक्त में यह भी था कि हार्ड ड्राइव कैन नॉट बी मोर देन 2 गीगा. आज आपका टेरास में है.
You have a hard drive of terabytes. I remember when I bought a computer, maybe somewhere in 2000, the the biggest hardware possible, the biggest hard drive was possible was of 2 gig. The processor was of initially the processor was 166, which was called as Pentium 1. Then after this it came to be Pentium 2, Pentium 2 Celeron, Pentium 3 and so on. But the speed, उस वक्त जो मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल थी विच आई वाज यूजिंग वाज अप्रोक्सीमेटली 200 एट माय होम. और मैं कहता ये इंटेल ओरिजिनल है. और यूनिवर्सिटी में आता था तो कहते हैं यहाँ इंटेल सेलेरॉन है, 233 मेगाबिट पर सेकेंड है. आज आप 233 मेगाबिट पर सेकेंड का प्रोसेसर इस्तेमाल करते हो? नहीं करते. आज आपका प्रोसेसर क्या है? आज आपका प्रोसेसर CPU, your processor is 2.2 gigabit per second and not 1. It is a Core i7. So you have multiple processors, each 2.2 gig. तो 200 मेगा तो इसके बच्चों की जगह भी नहीं है. तो इट मींस अब वो सॉफ्टवेयर जो आज के सॉफ्टवेयर है उनको ये चाहिए, उस वक्त के सॉफ्टवेयर को वो इसके मतलब नए सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे. आफ्टर दिस न्यू सॉफ्टवेयर, लाजमी तौर पे हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है तो कोई इंप्लीमेंटेशन इंजीनियर, अगर इंप्लीमेंट हो गया तो कोई इंस्टॉल करेगा, यस, कोई सेल करेगा, सेल इंजीनियर, एंड देन कोई खराबी भी तो आएगी तो ट्रबल शूट भी करना पड़ेगा. तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेडीज एंड जेंटलमैन व्हाट यू थिंक, क्या वाकई जो आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं, क्या बताते हैं अनम, क्या नाम है, ईमन, इशाद जी, इशाद, इंजीनियरिंग क्या है, तबादा. तो दैट इज नॉट द आंसर. यहां से अगर आप देखें तो डू यू एग्री विद योर दिस कॉन्सेप्ट? देयर इज नो अपॉर्चुनिटीज, नो समथिंग इन द फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर, वेरी, मैं नहीं कह रहा कि फ्यूचर इन आफ्टर 40 ईयर्स, मैं कह रहा हूं आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर. तो ये कहना कि जी जगह नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, दैट इज टोटली रॉन्ग. लेकिन द क्वेश्चन इज, तो फिर आखिर हमारे इंजीनियर साहिबान निकल के 2-2, 3-3 साल क्यों बेरोजगार फिरते हैं और उसके बाद भी उनको कोई जबरदस्त चीज नहीं मिलती? व्हाट्स द प्रॉब्लम? जैसे मुझे चंद दिन पहले एक स्टूडेंट ने फोन किया कि जी मैंने 2021 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मास्टर किया कंप्यूटर साइंस में. कहता है बहुत सी नौकरियों के पीछे फिरा लेकिन नहीं मिला, और अब एक किसी प्राइवेट कंपनी में केपीओ का काम करता हूं, की पंच ऑपरेटर का काम करता हूं. वाई? उसके लिए दुनिया और है और बाकियों के लिए दुनिया और है. इज इट? मसला किधर है? किस्मत का मसला है? नहीं, हमारे पास एक अच्छा वो है, किस्मत खराब दे, अल्लाह बखैर कही. क्या हुआ? किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो ये भी अच्छी बात. लेकिन द क्वेश्चन इज कि अगर ये बातें होती तो हमारा पैगंबर भी कहता अल्लाह ने चाहा तो जंगे बदर जीत जाएंगे, लड़ो नहीं, आराम से लेटो. बातें दुनिया दा. भाई हम तो मजहब वाले नहीं हैं, हम तो दीन वाले हैं. दैट द डिफरेंस. ये काम कोई ईसाई कहे तो बात मानने की आ जाएगा, हमारा तो जितना हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल अल्लाह है, उससे कई गुना ज्यादा हुकूकुल इबाद है, यानी दुनिया के काम करो. तो ये सारी जो बातें अभी आपने की अपने आप को तस्कीन देने की कि ख्वार मा ज डिजर्व को,
Otherwise, you definitely have a good future. Everything is available for you, but आपने थोड़ी सी अपनी सोच को बदलना है कि भाई जो मैं चाहूं वो मैं कर सकता हूं, अल्लाह मेरी मदद करेगा। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि किस्मत में हुआ तो हो जाएगा, तो किस्मत में हुआ तो हो जाएगा नहीं होगा। क्योंकि हमारे पैगंबर ने, अगर ऐसा होता तो हमारे पैगंबर भी क्यों बकरियां चराते, क्यों वो शाम, शाम वाज फार अवे, तो अब वो अरब से शाम तक क्यों तिजारत का माल लेकर जाते? अल्लाह बहू की कहना, उनके लिए वो अल्लाह ने कहा कि नहीं तो आप मेहनत करो, तो हमारे लिए हम कहते हैं हम मेहनत नहीं करते। बोले कि अल्लाह बहू की, बोले अल्लाह फारगा दे। तो जेंटलमैन अपनी सोच बदलो। और क्या हमें इसके लिए चाहिए, क्या ख्याल है जी, क्या करें? ये हमने लिखा कि जनाब अपने नॉलेज और स्किल्स को इंप्रूव करो फॉर इन दिस, इफ यू वांट इन दिस एरिया। लेकिन मैं सिर्फ ये इस एरिया के लिए नहीं, अगर यू वांट टू गो टू डीएसपी, इफ यू वांट टू गो इन सिग्नल प्रोसेसिंग, वट एवर वेर एवर यू वांट, इट्स ऑल जगह पे यू विल फील कि यू नीड नॉलेज एंड स्किल्स टू ग्रैब द इंडस्ट्री। क्लियर? तो सारी बात का मकसद ये था कि आपकी तकदीर आपके अपने हाथ में है, आगे बढ़ो। देखिए आपके अपने दोस्त ने अपनी आप सबकी बात के साथ जबरदस्त अटैचमेंट दी। वो कहता है कि जी क्या करें जी, तो दोबारा सुना दें ताकि हमें। अल्लाह ने तो वादा कर लिया कि जिसके लिए तुम कोशिश करोगे मैं तुम्हें दूंगा। सिर्फ आराम से बैठे रहने से बातें नहीं बनती। तो हमें अरेबिक में भी मिल गया और उर्दू में भी उसका आंसर मिल गया। तो आई होप कि आपका माइंडसेट अब चेंज होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें स्किल चाहिए इन द एरिया ऑफ नेटवर्किंग, क्या करें? द आंसर इज, हमें सबसे पहले तो ये कि ठीक है आप कह सकते हो कि जी मैं किसी किताब से, किसी साइट से पढ़ के नॉलेज हासिल कर लूंगा। वी एग्री विद यू। स्किल जो है वो आपको हाथ गंदे करके मिलता है। मिसाल के तौर पे एक मैकेनिक है, जब तक वो गाड़ी के साथ जाके अपने हाथ काले नहीं करेगा, गाड़ी को वो ठीक नहीं कर सकता, ना वो सीख सकता। सिमिलरली, इफ यू वांट टू बिकम ए ड्राइवर, जेंटलमैन, फॉर दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि अगर थ्योरी में यहाँ पे आपको 3 दिन भी पढ़ाता रहूं, 3 दिन का 3 महीने पढ़ाता रहूं कि ड्राइविंग कैसे की, नहीं। द ओनली सोल्यूशन इज कि विद द नॉलेज of the car, and then definitely you have to sit on the seat, driving seat, और आपने स्टेयरिंग को अपने हाथ में लेना है और बिस्मिल्लाह पढ़ना है। अब दैट डिपेंड अपॉन योर स्किल। अगर आपका वो स्किल नहीं है तो फिर तो यही होना है जो आपने फरमाया। लेकिन अगर आप प्रॉपर टीचर से वो कर ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ही विल गिव यू एवरी वे कि जी किस तरह आपने अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है और दूसरों को भी प्रोटेक्ट रखना है और रोड सेफ्टी का ख्याल रखना है। यही तो कह रहा हूं कि यू नीड द नॉलेज एंड स्किल्स। अब द क्वेश्चन इज हाउ आई कैन गेट दीज स्किल्स, एंड द आंसर इज अगेन कि मुझे इन इक्विपमेंट के साथ जो नेटवर्क बनाता है उनको, मुझे उन पे काम करना मुझे आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे, इफ आई ओपन वन ऑफ दी slide here probably,
चलिए इसको ले लेते हैं। अगर हम ये देखें, जी, तो आप देख रहे हैं कि एक टूल ओपन हो रहा है जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। और अगर इस टूल को हम यहां आपके सामने रख दें तो इसमें आपको ये चीज दिखाई दे रही है, प्लीज वेट जेंटलमैन। जितना आपकी उम्र है उतना से ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्लास को मिसबिहेव करके और गुजारा कर सकते हैं, तो आई कैन बिट विद यू, बैट विद यू, आप नहीं कर सकते। मुझे आपको टैकल करना बड़ी आराम से आता है, लेकिन आप अगर मजबूर करते हैं तो आई कैन। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि क्लास का इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे। मैंने उन उस्तादों से भी पढ़ा है कि जिन पे आप क्वेश्चन करते हुए भी डरते थे, क्योंकि पता होता था कि अगर क्वेश्चन किया तो बड़ी सख्त किस्म की हालात में जाना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा माहौल हमारा हो, खुल के डिस्कशन की जाए, लेकिन आ, अपने रुतबे का ख्याल रखें। और अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर हमारे लिए मजबूरी हो जाती है। क्लास का जो डिकोरम है वो तो मैंने हर कीमत पे मेंटेन करना है। तो इसलिए अपने फायदे में रहो। अपने फायदे में रहोगे तो जितना मर्जी पूछोगे आपको मैं फैसिलिटेट करूंगा। लेकिन अगर इधर उधर की हालात पैदा करने की कोशिश करोगे तो मेरे पास कंप्लीट मैकेनिज्म मौजूद रहता है कि भाई फिर डील करो। क्योंकि दो चार लोग पूरी क्लास को खराब करते हैं, विच इज नॉट डेफिनेटली डिजायर्ड। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रख लें। तो जनाब आपको ये चीज नजर आ रही है। अब ये एक नेटवर्क है। क्या इस क्लास में कोई ऐसा है जो मुझे ये बताए कि ये एक नेटवर्क है या मल्टीपल नेटवर्क्स हैं? दो हैं। व्हाट्स योर नेम? शुमाइल। शुमाइल ने कहा दो हैं। क्या कहता है ऐसा? दो हैं। एक है। तीन है। तो हम आगे जाके देखेंगे कि छह नेटवर्क्स हैं यहां। कैसे मैं छह कह रहा हूं, आई विल एक्सप्लेन। ना एक है, ना दो है, ना तीन है, ना चार है, छह। लेकिन मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि छह है कि दो है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ डिवाइसेस लगे हुए हैं। इसको मैं कहूंगा एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस लाइक योर लैपटॉप, लाइक योर स्मार्टफोन, लाइक योर लैपटॉप। और एंड दिस इज, व्हाट इज दिस? इसने कहा स्विच। सी, शाबाश। This is an Ethernet switch. No more hub are used in the network nowadays. So, have you seen this Ethernet switch somewhere working? Where? Lab में? I haven't seen. ओके ओके ओके, आई गॉट इट। वो जो बिल्कुल टीचर के साथ इधर इस साइड पे, वो स्विच नहीं है। वो स्विच नहीं है। मैंने कल ही उसको, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले क्लासेस कभी डबल में नहीं ली, तो कल मैं जब डबल लैब गया, मैंने उसको उधर आगे होकर देखा कि क्या है। तो बताता चलूं कि वो पैच पैनल है। क्या है? पैच पैनल है। चले। तो स्विच जो अगर आपने देखना है तो दी दी आंसर इज, इसको फ्रेंड, जी। तो जेंटलमैन, स्विच अगर आपने देखना है तो दो जगह आपको बताता हूं कि वहां जाके जल्दी से देख लो। पहली बात,
डबल ई, जैसे आपने कहा डबल ई, डबल ई से बाहर आओ तो दीवार पे एक डब्बा लगा हुआ है, उस डब्बे में स्विच है, नंबर वन। नंबर टू, मुफ्ती साहब के कमरे के बाहर वहां पे एक बॉक्स लगा हुआ है, डेटा बॉक्स कहते हैं इसे, डेटा बॉक्स के अंदर स्विच लगा हुआ है। सर सफदर के ऑफिस में भी बिल्कुल वहां भी स्विच है, बॉक्स के अंदर टच पैनल भी है और स्विच भी है। इसी तरह अगर आप सिस्को लैब आते हो तो जून दरवाजे से इंटर होते हो तो ऊपर एक लगा हुआ है, वो भी एक इथरनेट स्विच है। इसी तरह जब आप स्टेयर से नीचे उतर रहे होते हो तो सामने भी आपको एक बॉक्स नजर आता है, उसके अंदर भी स्विच है। इसका मतलब है कि इस तरह के बेशुमार स्विचेस, ये स्विचेस आपके कहीं ना कहीं आपके आसपास लगे हुए हैं। इसके अलावा, स्विचेस के अलावा कई जगहों पे आपके राउटर्स भी लगे हुए हैं। आई मे कॉल, मे बी दिस इज माई एज रूटर एंड आर एक्सेस रूटर, एंड माइट बी दिस इज माई बॉर्डर रूटर। अभी कंफ्यूज मत हो, इसके बॉर्डर से कह रहा हूं कि इट इज कनेक्टेड मी टू द इंटरनेट, इट इज बॉर्डरिंग माई नेटवर्क एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज अ बॉर्डर बिटवीन इनसाइड नेटवर्क एंड आउटसाइड नेटवर्क। द क्वेश्चन, मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं भाई, इसका मतलब है कि जब भी यू विल बी पार्ट ऑफ द नेटवर्क, you have to play with the end devices, you have to play with the switches, routers, firewalls, intrusion detection systems, intrusion prevention system, web security appliances, VPNs, AAAs, IoTs, again end devices. So all of them you have to play with them. तो इसलिए हम कहते हैं कि अब एक और चीज, अभी मैंने किसी से पूछा कि ये क्या है, उसने कहा जी ये स्विच है। क्यों हसी, आपने ये कहा ना, अगर मैं ये कहूं कि ये तो स्विच नहीं है तो ऐसा क्या जवाब देगा? क्या नाम है आपका? निदा। निदा इधर आओ, मैं एक 5 मिनट जो है अवेलेबल नहीं हूं, 2 मिनट, आ जाओ इधर बैठ जाओ। निदा किस सीट पे बैठी हुई है? टीचर की सीट पे बैठी हुई है, सीम्स लाइक ए प्रोफेसर। क्या वाकई वो टीचर है, प्रोफेसर है? आपने कहा नो। इसका मतलब है कि वो बिहेव कर रही है लाइक अ, लाइक भाई। ओके, तो शी इज बिहेविंग लाइक अ, शी इज मिमिकिंग लाइक, जैसे आप लोग बाज औकात जो जूनियर्स आते हैं तो आप उनको एक कमरे में ले आते हैं और कहते हैं कि ये टीचर साहब हैं, सुने इनकी बातें। तो उस वक्त, बट ही इज नॉट ए टीचर। इसका मतलब है कि ही और शी इज मिमिक्रिंग लाइक ए टीचर। इस अमल को कहते हैं मॉडलिंग। क्या कहते हैं? मॉडलिंग। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि निदा इज मिमिक्रिंग और मॉडलिंग अ टीचर। अब बात समझ आ गई? तो अब निदा जब भी आपको याद रहेगी तो आपको मॉडलिंग याद रहेगी। शाबाश, थैंक यू बच्चे। इसी तरह मैंने कहा ये स्विच नहीं है, ये मॉडल है स्विच का। मैंने कहा ये स्विच नहीं है, ये स्विच का, बच्चे आपको कुछ चीजें गिर गई जिसकी भी। अब ये मॉडलिंग हम 3 तरह से कर सकते हैं। एक तरीका ये है जो कि हमारा सबसे कमजोर तरीन एलिमेंट है, जो कि आपने प्रीवियस सेमेस्टर में ऑब्जर्व भी किया, और वो है मैथमेटिक्स। मैथ्स बोलता है और हम डेफ हैं, मैथ्स बोलता है और हम डेफ हैं। तो इस डिवाइस के पीछे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो इस अमल को हम कहते हैं व्हाट वी हैव अचीव्ड द मैथमेटिकल मॉडलिंग। व्हाट वी हैव अचीव्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग। दूसरा ये कि हम एक छोटे पैमाने पे, मिसाल के तौर पे अभी हमने जो किया एक छोटे पैमाने पे काम है कि हमने सिर्फ 4 स्विचेस, 2 राउटर्स, 4 एंड डिवाइसेस यानी पीसीज,
अगर हम रियल में इतनी डिवाइसेस ले लें और उससे एक नेटवर्क बना लें, तो वी मे कॉल्ड ए प्रोटोटाइप या एक्सपेरिमेंटल बेड. Again, that prototype or experimental bud is a model of a bigger network. So again, what we are doing? Modeling. Then is the third and the most used one is, can we represent the functionalities of a switch or a router or a firewall and others by software? Can we? Yes, yes, we can. And that phenomena is called in the simulation. What we call it? What type of what type of modeling it is? Simulation. And that is probably the most cheapest one. क्योंकि हम स्पेशली जब हार्डवेयर हमारा डिप्लॉय हो चुका हो, जैसे मिसाल मैंने अभी कहा कि अगर ये स्विच जो है लगा हुआ है, या मेरे कल आप आके कहेंगे जी सिस्को में जो स्विच लगा हुआ है, हम इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, आई विल नेवर अलाउ यू. इसका मतलब है कि जो हमारा डिप्लॉयड नेटवर्क होता है उस पर हमें कोई भी प्रैक्टिस करने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता. या आप सीएमएस में चले जाएं और कहें जी जो आपका ऑरिकल में सीएमएस का सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है, जिसमें हमारे मार्क्स पड़े हुए हैं, जिसमें हमारी सारी चीजें हैं, हम जरा उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं. सोहेल साहब ने कहना है कि इस यूनिवर्सिटी में नजर मत आना आइंदा. इसका मतलब है कि दैट इज नॉट अलाउड. तो हम अपने हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, कॉन्फ़िगरेशन स्किल्स को, ट्रबल शूटिंग स्किल्स को हम यहां पे आके कर सकते हैं. तो फॉर दिस व्हाट वी नीड सम सिमुलेशन टूल. नाउ वन ऑफ द सिमुलेशन टूल इज सिस्को पैकेट ट्रेसर. सिस्को पैकेट है, मैंने ये नहीं कहा दिस इज द ओनली वन, मैंने ऐसे कोई लफ्ज नहीं कहा, मैंने कहा दिस इज वन ऑफ दी. अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये हमें चाहिए तो हम लाइव तौर पर हम इस पे पूरा सेमेस्टर काम करना चाहेंगे, अगर हमारा प्रोजेक्ट भी आता है तो माइट भी हम इसी पे करें, तो फिर तो हमें ये टूल तो मिले ना. ऐसा ही है ना, टूल तो हमें मिलना चाहिए. तो इसलिए अगर आपने संडे को देखा हो तो मैंने आपको एक ईमेल की ना मैंने, इसलिए की, सब कर ली, शाबाश. तो मैं इस वीकेंड पे चेक कर लूंगा कि किसने एक्सेप्ट की और किसने नहीं की. ऑल द कंट्रोल इज विद द इंस्ट्रक्टर. तो अगर आप इधर उधर जाएंगे तो पकड़े जाओगे. तो जेंटलमैन, अब आपको इसलिए वो ईमेल भेजी कि उसमें एक लिंक था. तो अगर नहीं भी किया तो आज जाके आपने कर लेना है. और उस लिंक को जब क्लिक करोगे वो आपसे आपका यूजर नेम मांगेगा, जो कि वही है जिसपे मैंने आपको ईमेल की है. वो मैंने कंट्रोल किया क्योंकि मैंने आपके रिजल्ट्स बनाने हैं, तो मुझे कहीं पे आपको पकड़ना है. तो दैट द रीजन योर आईडी इज विद मी. एंड दैट इज, व्हाट इज योर आईडी यूनिवर्सिटी में? क्या आपका वो है? 2223PW CSE2270@utpeshawar.edu.pk. दैट इज द आईडी ऑफ जेंटलमैन. इस तरह आपकी भी होगी. ये नहीं कहना कि जो इसकी है बस टोल होगा. हर एक की अपनी अपनी. आपकी क्या है? 23PWCSE2329@utpeshawar.edu.pk. तो आपने वो है, पासवर्ड आपकी मर्जी का है. वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, वट एवर द पासवर्ड आपके और उसका वो है. डेफिनेटली वो चाहता है कि हार्ड हो ताकि कोई और उसको ब्रेक ना कर सके. तो वो आपका और आपके सिस्टम का काम है कि आप किस पासवर्ड पे उसके साथ एग्री करते हैं. बट वंस यू हैव द पासवर्ड, तो आपका, जैसे इन्होंने कहा जी हमने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि जनाब ये आपका स्टूडेंट हो गया है. तो फिर आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे जेंटलमैन, आप क्या करेंगे कि आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे. ये ब्राउजर मैंने ओपन किया.
और इस ब्राउजर में मैंने लिखा www.netacad.com। क्या लिखा? नेट अकेड नहीं, नेटवर्क एकेडमी। नेट अकेड मीन्स नेटवर्क एकेडमी। तो इस नेटवर्क एकेडमी को आप लॉगिन करेंगे, लेकिन लॉगिन से पहले कुछ चीजें बताता हूं। हम्म अगर आप यहां देखें तो लॉगिन करने की जो यूजर नेम पासवर्ड मैंने बनाया, आई विल बी यूजिंग हियर नाउ। समझ आ गई? अब क्वेश्चन ये है कि भाई मैं सिस्को को ही क्यों प्रेफर कर रहा हूं। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, मल्टीनेशनल है। और चाहे मेरे मुझे अगर मैं अपना एक कैरिकुलम बनाऊं तो माइट भी उस पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है, लेकिन अगर सिस्को एक कैरिकुलम बनाता है उस पे कोई भी शख्स क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, क्योंकि वो इंटरनेशनल ब्रांड है। उनको आज की टेक्नोलॉजी का भी पता है, उनको 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का भी पता है, और जो 20 साल के बाद होना है उसका भी उनको आइडिया है। इसलिए सिस्को कहता है कि मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 28.3 मिलियन लोगों को पढ़ाया है। इतने तो आपकी यूनिवर्सिटी ने नहीं पढ़ाए जी। फिर फरमाता है कि जनाब दुनिया भर में 31,300 सिर्फ इसके इंस्ट्रक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि हर कोई ये कोर्स पढ़ा भी नहीं सकता। फिर आगे जाके आपको बताऊंगा कि फिर यहां इसको कहते हैं इंस्ट्रक्टर। फिर इंस्ट्रक्टर से ऊपर होता है मास्टर ट्रेनर। क्या होता है शमाइल मास्टर ट्रेनर? मास्टर ट्रेनर वो होता है जो कि उस्तादों को पढ़ाता है, यानी हम उसको कहते हैं ये उस्तादों का उस्ताद है। एंड वी आर थैंकफुल टू अल्लाह कि आपके सामने ये दोनों रोल्स में जो टीचर बैठा हुआ है उसके बाद ये दोनों रोल्स हैं। इज इंस्ट्रक्टर एज वेल एज ए मास्टर ट्रेनर। तो ये दैट इज गुड फॉर यू। जैसे अभी ये आपको मैंने कहा कि ये सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिया, ठीक है, वी वर्क क्वाइट हार्ड फॉर दिस कि जी ये चीज हमें मिल जाए, हम भी इस 31,000 में आ जाए पूरी दुनिया में, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को ये नॉलेज दे सकें। अब इस क्लास में मेरे ख्याल से कोई ऐसा स्टूडेंट मेरे साथ नहीं रहा हुआ, लेकिन कहीं मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास में भी मैं यानी इस सेशन में भी आपके साथ एक इवेंट करूं जिसमें मैं ये आपको बताऊं कि आखिर आप अपना रिज्यूमी, आप जब अपनी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो व्हाई द एम्प्लॉय इज नॉट रिस्पॉन्डिंग यू। और बाज ऐसे खुशकिस्मत भी हैं जो कि जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, उनको जॉब मिल जाती है। आप कहेंगे दाखिल कलम निधि आवरे दिले दासिंग मुमकिन है जी। डेफिनेटली दैट इज इवन एहसन का दोस्त जो है जिससे ये मशवरे वगैरह पूछता रहता है, उसने भी अप्लाई नहीं किया था। नूरुल हक ने, उसने अप्लाई नहीं किया था। मेरे बेटा की वजह से मैंने कभी भी उनको ये नहीं किया। उसने वो अपनी स्किल्स को बेचना उसको आता है, उसको अपनी स्किल्स दूसरों पे बेचना आता है, सिर्फ मेरा बेटा की वजह नहीं है। वो इस तरह अपने आप को मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बेचता है कि अभी उसने एक जितना काम मुझसे किया था उसका कुछ एक्स्ट्रा मुझसे किया, तो उसकी पूरी कंपनी के जो उनकी एक स्टाफ की एक पूरे पाकिस्तान में उसमें वो ईमेल की गई कि जी हमारे पास एक रिसोर्स प्रोड्यूस हो गया है जो कि ये काम कर सकता है। अब उसका उसको फायदा क्या हुआ? अर्जेंट अर्जेंट अपडेट हो गया, यानी कि उसको प्रमोशन मिल गई।
उसने अपने आप को बेचा, एंड दैट प्रमोशन विल गिव 20,000 प्लस एवरी मंथ। तो ना उसने पहली दफा अप्लाई किया, ना उसने दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, दोनों पोस्ट में उसने अपने आप को बेचा। उसने बताया कि जी मैं अब सिस्को का ट्रेनर बन गया हूं। तो उसकी कंपनी ने उसके कभी ये ऐसा ना आपके लिए काम करे, पूछे नूर हक को कि जी वो ईमेल किधर है, जो कि पूरे नया टेल के एम्प्लॉयज को की गई जी कि वी हैव नाउ लोकल रिसोर्स अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग अवर एम्प्लॉयज। एंड देन उन्होंने कहा कि जी ओके वी आर हैप्पी के हम वी कैन गिव यू ए 1 स्टेप प्रमोशन एज वेल। जबकि अब उसके मेरे ख्याल से हसन को पता है कि उसके अभी 8-9 महीने से ज्यादा नहीं हुए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आप 6-7 महीने में अगले उस पर कब्जा कर लें, दैट इज गुड। प्लस उसको इसका फायदा क्या हुआ, उसने फिर अप्लाई नहीं किया, एंड देन जेंटलमैन प्रोबेबली ही माइट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिट होता है जो कि इंटरप्राइज यानी बिग नेटवर्क्स को मैनेज करता है। माइट बी ही मे गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो इन दैट यूनिट, कि जिसमें तुम बड़े हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जैसे वन ऑफ द क्लाइंट उनका जो है दैट इज अमेरिकन कॉन्सुलेट। ऐसे उन्होंने कहा जी हम आपको इस यूनिट में अगर ले जाना चाहते हैं, आर यू विलिंग? तो होता है ये फायदा। आप भी अपने आप को कैश करना सीखें, फिर आपको नौकरियों के पीछे नहीं, नौकरियां आपके पीछे आएंगी। तो जो आपने कहा ना कि आपका बेटा, दिस इज नॉट दी, कोई भी प्राइवेट सेक्टर ये चीजें नहीं खरीदता। गवर्नमेंट सेक्टर होता तो मैं आपकी बात मान लेता कि जी गवर्नमेंट सेक्टर है, वो कहते हैं खैर दे फलाने जोए दे। प्राइवेट सेक्टर कहते हैं माते पार से कोलिशे। तो जेंटलमैन, मैंने आपको बताया कि जी इसलिए मैं सिस्को को वो कर रहा हूं कि इसके आपके पास रिसोर्सेज जो 31,000 पूरी दुनिया में है, उनमें से आपके पास भी रिसोर्स वो मौजूद है। नेक्स्ट वो कहता है कि 12,200 ऑर्गेनाइजेशन हमारा कैरिकुलम पढ़ाती है, और साथ बता भी रहे हैं फिजिकल 2025, कहते हैं 2025 में 12,200 ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हमारा कैरिकुलम पढ़ाते हैं। फिर वो कहता है कि वी आर अवेलेबल इन 195 कंट्रीज विच इज रेस्ट अप्रोक्सीमेटली द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हम हैं। फिर वो कहता है कि 97% ऑफ द स्टूडेंट हु ग्रेजुएट फ्रॉम अस, हु बिकम आवर एलुमनाइज, उनको क्या मिल जाता है, दे गेट ए कैरियर और दे गेट द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो मैं आपको एक मुख्तलिफ जॉब सीकिंग साइट्स पे लेकर जाऊंगा किसी वक्त, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट। तो कई जगहों पे आप देखेंगे, क्योंकि वो जॉब सीकिंग साइट मैंने तो नहीं बनाई, तो उन पे जाके आपको पता चलेगा कि जैसे मैंने अभी आपको कहा नूर हक का, उसकी डिग्री तो 6 महीने के बाद आई थी। मैं खाली इस बात से तो हम मेरे एग्री करेंगे, डिग्री उसके पास नहीं थी, सैलरी वो पूरी लेता था, नाम के साथ वो लगाता था जी मैं इंजीनियर हूं, जबकि जब डिग्री नहीं है तो किस चीज के इंजीनियर हो? इसका मतलब वर्ड डजंट सी ऑन योर डिग्री, ही लुक्स एट योर स्किल्स। तो दैट इज द टाइम, आगे बढ़ो। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो क्या कहता है, 4.8 बिलियन स्टूडेंट से सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी हेल्प देम लैंड ए न्यू जॉब। तो इसलिए हम इसके टूल्स और इसके इन चीजों के साथ काम करना चाहते हैं कि वेर एवर यू गो, वेदर इन मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, वेर एवर, यू विल फाइंड कि जी ये इक्विपमेंट वहां पे मौजूद है, और उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए आप जैसे यंग लोग चाहिए। लर्न इट, कौन सा मसला है? क्लियर? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कहा कि जब आप ये, और सिस्को कहता है कि जी हम आपको इन एरियाज में हेल्प कर सकते हैं।
साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, AI and data science, programming, information technology, digital literacy, professional skills, sustainability, and Cisco Packet Tracer. तो मैंने आपको इनिशियली इस जगह पे लेकर आया कि जी लेट स्टार्ट। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप उसको, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने अपना क्रेडेंशियल क्रिएट कर लिए हैं, तो आप जब ये लिखेंगे ना netacad.com और इसको दे देंगे अपना यूजर नेम और पासवर्ड, ये आप देखें लॉगिन, और लॉगिन में आपसे मांग रहा है ईमेल, यानी आपकी यूजर नेम, यानी वही जो अभी आपने बोला 23PWCSC ब्ला ब्ला, वो आप यहां पे लिख देंगे। मेरा जो है वो डेट इज ehsanhaq@gmail.com, एंड देन व्हेन यू क्लिक द लॉगिन इट विल आस्क यू द पासवर्ड। अब मैं फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा रहा था, कहते सर ये नजर क्यों नहीं आ रहा, मैंने कहा नजर करवा दिया तो तुम तो इंस्ट्रक्टर बन जाओगे, तो इसलिए नजर नहीं आ रहा कि आपने अपना पासवर्ड यहां पे इंटर करना है। तो जब आप इंटर करेंगे तो ये आपने लॉगिन किया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई हैव द डुअल रोल, आपको इस तरह नजर आएगा, इस तरह की टाइल्स नजर आएंगी, जहां पे एक आपका होगा विच विल बी गेटिंग स्टार्टेड विद सिस्को पैकेट ट्रेसर। नाउ मैंने जैसे आपको कहा कि जेंटलमैन आई हैव द डुअल रोल, आई हैव a रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर, contact instructor and staff in Cisco Academy, University of Engineering and Technology, Peshawar. And I have another role, which is bigger one, and that is the instructor training center. So I'm part of instructor training center, and I'm instructor here as well, and it's another academy. And that give me the power of the master trainer. Okay. तो जेंटलमैन आपके लिए हम यहां पे मैं आता हूं, माई क्लासेस आपको लर्निंग में मिलेगा, मुझे माई क्लासेस में मिलेगा। एक चीज और, आपको मैं प्रॉब्ली इसी वीक में कुछ लिंक्स भेजूंगा, और उस सब लिंक्स को आपने क्लिक करना होगा, साइट खुलेगी, गेट स्टार्ट करना है, और फिर बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। दैट इज अगेन वेरी प्रिविलेज फॉर यू पीपल। अगर आप ये देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, नेट अकेड कप। ये कप क्या है, ये कप है लेडीज एंड जेंटलमैन, वेयर आई शुड फाइंड इट, मे बी हियर। देख लें जी, जॉब्स नहीं है, तबाही डेरा ज्यादा था। कहता है यूई बेस्ड कैंडिडेट ओनली, वन ऑफ माय फ्रेंड इज लुकिंग फॉर L2 सपोर्ट, पे इज 12K, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड डायरेक्टली मैसेज मी, नेटवर्क रिसोर्स विद सर्विस प्रोवाइडर। तो इस तरह की हमारे पास हर रोज, अभी देखा मैंने इसको देखा भी नहीं था अभी तक, मेरे लिए अनरेड है, ऐसी चीजें हमारे पास आती रहती हैं कि जी अब मुझे L2 सपोर्ट इंजीनियर चाहिए। तो मैं 6 सेमेस्टर में से किसको कहूंगा जी इसका नाम ले लो, इज देयर एनीवन L2 सपोर्ट इंजीनियर है, कौन, पहले ये तो बता दे L2 कहते किसे हैं, फिर उसके बाद आगे जाऊंगा। तो एनी हाउ, दिस इज नॉट टू डिस्करेज, अगर वो इस पे काम कर रहा है तो दिस इज अप्रिशिएबल, लेकिन अब इसका मीनिंग है कि L2 का मतलब क्या है। अल्दो वो कह रहा है कि तनख्वाह कम में 12,000 है, लेकिन आप लोगों के, यंग लोगों के लिए 12,000 गुड इनफ। तो कहने का मेरा मकसद ये है जेंटलमैन के, इसी तरह अगर और भी कई जॉब्स यहाँ पे आपको नजर आएंगी कि लोग भेजते हैं कि जनाब ये आप अपने स्टूडेंट्स कोई है तो लेकर आओ, हम कहते हैं जी हमारे स्टूडेंट सोए हुए हैं, सोने दो उनको, वो खफा होते हैं, उठाओ तो खफा होते हैं। एनी हाउ,
तो जेंटलमैन, मैं ये देखना चाहता था कि आपके साथ व्हाट आई वांट टू शेयर। हम्म हम्म बल्कि दैट हैज बीन डन बाय हुरेश। तो लेट्स सी के उसके अकाउंट से देख लें। दिस इज साइबर कप 2026 and in collaboration with the Real Madrid फुटबॉल क्लब स्पेनिश। तो सिस्को और रियल मैड्रिड मिलके एक साइबर कप 2026 करवा रहे हैं, एंड वी आर द पार्टनर्स। एंड हु इज पार्टनर, हु इज, कहां से लोग हो सकते हैं? यूरोप, ई फॉर यूरोप, एम ई फॉर मिडिल ईस्ट, ए फॉर अफ्रीका। ईमिया लिखा हुआ है, मिडिल ईस्ट में हम आते थे। हाँ, लेकिन ये जो हमारा यहाँ का हेड है वो मिडिल ईस्ट को देखता है और पाकिस्तान को भी देखता है, इसलिए वी आर पार्टनर देयर। तो यूरोप के लोग एक तरफ, अगर पार्ट कंपीट में तो मैं गया हूं, देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट कितने तकड़े हैं। लेकिन वही, आज भी इनका जो हेड है उससे बात सुबह फोन पे हो रही थी, तो हमारा ये था कि अगर हम जीते तो अल्दो, मैंने अपने फोर्स को तो ये कहा कि जनाब आपका रवैया क्या होना चाहिए। ईमिया साइबर कप 2026 यू विल विन, हमने जीतना है। लेकिन अगर हम यूरोपियों के मुकाबले में, हम तो लोकल यूनिवर्सिटियों का मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अगर हम उनके साथ compete भी कर जाएं, हार भी जाएं, तो ये हमारी हार नहीं है, ये फिर भी हमारी जीत है कि हम फिर भी तुम्हारा मुकाबले के लिए वी आर देयर। तो वी आर बिकमिंग पार्टनर, वी विल compete, वी विल ट्राई। बाकी ट्राई करना हमारा हक है, बाकी देखेंगे हमारे लेवल अगर नहीं भी है तो हम 2027 में फिर करेंगे, हमें कोई रोक तो नहीं सकता। एक दफा अगर हम इन हो गए हैं तो वी विल बी कंटिन्यूइंग। दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस। तो अब अगेन यहाँ पे, जैसे मैंने अभी कहा था कि कोई है जो L2 इंजीनियर के लिए उसका नाम आगे किया जाए, इसी तरह है कोई जो कि एक बड़ा कप जो है उसको जीत सके, वी विल ट्राई। हम नहीं कहते कि हम नहीं जीत सकते, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हमें पता है कि हैं जिनको हम लड़ा सकते हैं। लेकिन लेकिन यू आर पार्ट, यूर एकेडमी इज अ पार्ट ऑफ दिस, तो वी आर ग्लैड फॉर दिस एज वेल। आज तक आपने किसी भी नेशनल पे भी मुश्किल से होता है, ये तो कम से कम इंटरनेशनल है। अगर आप लड़के आपने सर्टिफिकेट ले लिया कि यू पार्टिसिपेटेड हियर, तो दैट विल, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विल बी वर्दी देन प्रोबेबली देन योर डिग्री। यू पार्टिसिपेटेड, आपको पार्टिसिपेशन का मिल गया, वो तो देंगे ना। तो हमारे हमारे लिए कोई इसमें कोई लॉस है? हम तो लॉस करके भी विन कर जाएंगे कि हम जहां भी अपने उसमें लिखेंगे, अपने रिज्यूमे में डालेंगे कि आई एम ए पार्ट, आई competed in that, but who provided you this opportunity? Cisco, your academy. So we are happy, we will try to create more opportunities for you people, depend कि आप कितना उसको एंजॉय करते हैं, उसको फायदा उठाते हैं। तो आगे चलते हैं। ओके, तो मैंने कहा कि आप जनाब क्या करेंगे, आप करेंगे
ये आपका 2020, ये 4 सेमेस्टर के लिए बनाया, ये 6 सेमेस्टर के लिए। आप इसको क्लिक करें, जैसे वहां पे उस थी ना टाइल, उस टाइल को क्लिक करेंगे तो यू आर हियर। अब क्या होगा, आप करेंगे डाउनलोड एंड यूज सिस्को पैकेट ट्रेसर, क्योंकि मेरा मसला क्या है, क्या मसला है जी, आपके पास पैकेट ट्रेसर है? यस और नो? डरो मत, क्लास में, इस क्लास के अंदर डरना नहीं है। नाम क्या है? निदा। निदा तो ये है। फिजा। तो फिजा को के पास नहीं है, तो मेरा मकसद ये है कि आज शाम तक फिजा के पास ये टूल होना चाहिए। गॉट इट? तो फिजा क्या करेगी, फिजा इसको क्लिक करेगी, डाउनलोड एंड यूज इसको पैकेट ट्रेसर। इसको क्लिक किया तो देखें, इस प्लेटफॉर्म का फायदा ये है कि मैनी थिंग यू विल बी फाइंड हेयर विल बी द वीडियोस। अब आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी और साइट पे, एवरीथिंग इज इन सिंगल प्लेस। You have the videos here. Like you can see video welcome for getting started with the Cisco Packet Tracer. You will have the exams here. Even you can see here. And that बदकिस्मती से आपको भी देना पड़ेगा। Getting this is the instructor activated final exam. तो इस बुरे दिन से एक दिन गुजरना पड़ेगा, इसलिए बी रेडी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आप पहला काम तो ये करते हैं कि, और ये आपके ग्रेड्स में काउंट होगा। अगर कंप्लीट करो तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा, दैट्स अगेन गुड पॉइंट। ठीक है जी, तो दो दो फायदे। तो इसका मतलब टोटली विन विन पोजीशन, नो लॉस। हाँ, सिर्फ लॉस ये कि नहीं करोगे तो फिर सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा और नंबर भी नहीं मिलेंगे। दैट्स अ गुड आंसर जी। तो हियर इज दी डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर एंड हियर इज द लिंक। तो आई क्लिक इट हियर, कॉपी इट एंड डिस्प्ले इन योर DCN। डी प्रॉब्लम मैंने किया भी होगा, DCN, ये 6 सेमेस्टर। और देखें आपके लोगों ने पहले से बताना शुरू कर दिया, मोहम्मद बिलाल साबिर, रजिस्ट्रेशन नंबर दे, सेक्शन C, आई डिड इट, इंस्टॉल्ड। यहां पे कौन फरमा रहा है? मसूद अहमद। यहां पे कह रही हैं लाइबा खान। यहां पे बता रही हैं मरवा खान। यहां पे बता रहे हैं मानूर रियाज। तो इन्होंने पहले से कर लिया, अप्रिशिएबल। लेकिन ये मैंने इनको ये डाउनलोडिंग लिंक प्रोवाइड कर दिया, तो ये आपके लिए भी एक, बिकॉज यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, एम आई राइट? तो गो टू दिस ग्रुप एंड क्लिक दिस लिंक, या अपने नेट अकेड पे जाओ, वहां भी ये लिंक पड़ा हुआ है। अब जब आप इस लिंक पे चले गए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने इसको क्लिक किया तो आपके ब्राउजर में खुल जाएगा। देखते हैं क्या खुलता है। वी आर एट द रिसोर्स हब, या वी आर एट द रिसोर्स हब ऑफ द सिस्को नेटवर्क एकेडमी। तो कहता है सिस्को नेटवर्क एकेडमी इज प्राउड टू ऑफर a one stop for easy access to all resources that you may find useful. Stay updated and learn on. So ladies and gentlemen, अगर आप पहले से लॉगिन है तो गुड, नहीं हो तो यहां लिखा होगा लॉगिन, क्लिक करें, यूजर नेम दें, पासवर्ड दें, यू विल बी हियर। अब आप स्क्रॉल डाउन करें तो यू विल फाइंड कि वो आपको कहता है कि जी आपके लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर लर्निंग रिसोर्स में मौजूद है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सिस्को पैकेट ट्रेसर? तो वो कह रहा है कि सिस्को पैकेट ट्रेसर एन इनोवेटिव नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सिमुलेशन टूल। एक सिमुलेशन टूल क्या करता है, ये टूल क्या करता है? हेल्प्स यू होन योर कॉन्फ़िगरेशन स्किल्स कैपेबिलिटीज। आपकी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करेगा। और कहां पे आप बैठे होंगे? ऑन योर डेस्कटॉप, ऑन योर डेस्कटॉप। जैसे अभी मैंने खोला था, तो आई एम सिटिंग ऑन माई लैपटॉप एंड आई हैव माई स्विचेस, राउटर्स,
media, everything with me. I don't have to buy it from somewhere, or I haven't go to the library or laboratory to do it, some experimentation. So that is use packet tracer to experiment while building, managing and securing infrastructure. अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। आपका सवाल ये होना चाहिए कि तीन ऑप्शंस क्यों? नंबर वन, इफ यू हैव ए मैक ओएस, डाउनलोड द फर्स्ट वन. Fiza, if you have the Linux or Ubuntu or Kali or Fedora or Red Hat or Parrot, you will be needing the second one. And if you are a window guy, then you can go for the third one. So whatever you are using, click accordingly and download it. I will advise you कि DSP का DCN का एक फोल्डर बना लें, उसमें एक फोल्डर फर्दर बना लें सिमुलेशंस, और उसमें इसको डाउनलोड कर लें. वो आपकी मर्जी के, यू डू इट इन द यूनिवर्सिटी, एट होम, और BRT पे जाके करते हो, फ्री इंटरनेट, BRT. So this is your choice. Okay, ladies and gentlemen, when you download it, what Aston will be doing then? The next step will be clicking this link. So I do the same, and I'm here. And if I make it a little bigger, ladies and gentlemen, it can be seen that it is Cisco Packet Tracer, and it is giving me again a link to download the packet tracer. We mean it is a link to the resource hub, Cisco resource hub. But I have already downloaded it. Now I have to decide whether if I have a OS Windows, I'll be using these steps. If I have a Linux system, I'll be using these steps. If I have a Mac, I'll be using these steps. So expected ये है कि most of you are using Windows. तो विंडोज कर रहे हो तो दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट. क्या करना है? मैंने पहले कहा कि जो भी डाउनलोडिंग फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एक्जी फाइल है, उसको अपने कंप्यूटर पे क्या कर लो? सेव कर लो. क्या कर लो? सेव कर लो. अभी कहा कि कोई एक फोल्डर बना लो DCN का, और उसमें एक सिमुलेशन का फोल्डर बना के उसमें रख लो, लैब में भी काम आएगा. देन आफ्टर दिस व्हाट यू विल बी डूइंग? डबल क्लिक this executable file. इस फाइल को क्या कर दो? डबल क्लिक कर दो, लॉन्च कर दो, रन कर दो, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. फिर इसके बाद बड़े मुश्किल स्टेप्स हैं. इतने मुश्किल स्टेप्स हैं कि आपको बस ये करना होगा. क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट एंड क्लिक नेक्स्ट. और जब क्लिक नेक्स्ट से हो जाए तो आप नाउ यू आर रेडी टू इंस्टॉल, एंड यू विल बी क्लिकिंग द इंस्टॉल बटन, and within 10 minutes approximately all this procedure will be over. क्लियर हो गया? तो फिजा के पीछे कौन बैठा हुआ है? थोड़ा सा ऊंचा बोलें. हुमैरा. तो हमारा ये 6 स्टेप्स हो जाएंगे, इतने मुश्किल मुश्किल स्टेप जो बताएं क्लिक नेक्स्ट वाले. इज इट पॉसिबल टू? यू कैन डू देम. तो हर किसी ने, जिस तरह के यहां लिखा हुआ था कि जी जो भी कर लेगा उसकी स्क्रीनशॉट लेगा और अपना नीचे नाम, अपना सेक्शन, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर मुझे ग्रुप में बताएगा, तो फिर मैं जाके सिस्टम पे देखूंगा कि हालात क्या हैं. ठीक हो गया जी? और सिस्टम में इतना पता नहीं चलता, इतना डरे मत, बस यूं होता है. ये ना आपका हाँ जी, ये 6 सेमेस्टर का है. बस मैं सिर्फ यहाँ आके
कहूंगा जी मैनेज लर्नर्स and I will be getting the complete list. Like for example, Binish Guluna haven't yet done. Here is the Zunaira Kashif Zain नहीं हुआ अभी तक. So I have the complete information. If I want to see the first 50, तो I can see the all. इसके बाद जमाल अहमद, उसके बाद सॉरी ये नहीं बताता क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग में मसला आएगा, तो इसलिए मैं ये क्योंकि वहां पे ईमेल्स और ये नजर आए फोन नंबर्स तो वो उसको नहीं जाने देते. एनी हाउ, तो आई हैव द कंप्लीट लिस्ट, कंप्लीट रिकॉर्ड. तो बी केयरफुल. अब इंस्टॉल हो गया तो फिर क्या करें? इंस्टॉल हो गया तो फिर क्या करें? लेकिन एक छोटी सी बात आपसे पहले, कि जो लोग मैं नॉर्मली कहता हूं कि इस वक्त आपके साथ जो सबसे ज्यादा मेहरबान है वो ये 3 लोग हैं. सबसे पहले पेरेंट्स, बिल्कुल नो शक. हर महीने आपको, अगर आप हॉस्टलाइड हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30K आपके अकाउंट में पहुंच जाता है. और जब आप 30,000 आप हॉस्टल में खाना खा रहे हैं तो फ्री में तो नहीं रह रहे हैं ना, हॉस्टल की फीस भी देते हैं. लगता है को फ्री रहने को कुछ जहां से इन्होंने ढूंढा हुआ है. फिर इसके अलावा तो अब आपको पता होगा, उसके बाद कुछ ना हो तो अभी सेमेस्टर शुरू हुआ है तो यूनिवर्सिटी भी नहीं छोड़ेगी, वो भी अपने पेरेंट्स को कहना है कि जी भिजवाओ. इसके अलावा आपके टीचर, इसलिए आज से कहता हूं, आज तो आपका दिल नहीं मानता इस बात करने को, लेकिन आज आप इस बात के लिए कि चाहे 4 बजे का टाइम है या इससे ज्यादा है, आपके लिए लोग अवेलेबल है. लोग समझ, दे आर रेडी टू हेल्प यू. आप इस पे हंस भी सकते हैं, लेकिन ये क्लास आधे घंटे में भी खत्म हो सकती थी. ये क्लास 2 का सेक्शन को कंबाइन करके भी हो सकती थी, और हो भी कई जगहों पे हो भी रही होगी. लेकिन अगर यहां नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि somebody is caring about you. तो योर टीचर्स, और इसलिए आज से कह रहा हूं कि जब ये क्लास से आपकी सेमेस्टर खत्म हो गया, and then when you will be asking for, when at that time when you will be reaching to an industry, and then you will be realizing, ओ गलती हो गई. अगर उस वक्त आप अपने किसी टीचर को रिक्वेस्ट करेंगे ना कि जी हेल्प मी, वो कहेगा सॉरी जी. इसलिए नहीं कि वो नहीं करना चाहता, इसलिए कि वो अवेलेबल नहीं है उस वक्त तो किसी और की जिम्मेदारी उसने ली होगी. इसलिए दैट इज द बेस्ट टाइम. एंड नंबर 3 इज द गवर्नमेंट. आप कहेंगे गवर्नमेंट क्या देती है? गवर्नमेंट जो है वो आपको, आपके वक्त में तो फीसें ज्यादा हो गई हैं. हमारी तो कोई फीस ही नहीं होती थी अप्रोक्सीमेटली. मेरे ख्याल से जो फीस वो लेते थे वो ट्रांसपोर्ट के लिए भी ना काफी थी. तो सारा खर्चा किसने हम पे किया? गवर्नमेंट ने. तो गवर्नमेंट तीसरा एलिमेंट है. लेकिन ये बताता चलूं कि ये बस चंद दिन के या चंद साल का रह गया टाइम. उसके बाद पेरेंट्स को कहोगे अगर 30,000 ले उलेगा कहना, देखिए बच्चे गुजारा कवा. मैनेज योर सेल्फ. अगर टीचर को कहोगे कि हेल्प करो, कहेगा बच्चे आगे टाइम में देने दी कड़े पखवाला सकारों का उस टाइम निश्ता. गवर्नमेंट को कहोगे जो पैसे मेरे भेजते थे यूनिवर्सिटी के पास वो मेरे अकाउंट में भेज दो, वो कहेगा दाहोले वन तोप दे. तो इसलिए दैट इज दी टाइम कि आप अपने आप को पहचानो, मेहनत करो और आगे बढ़ो. अब लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ चीजें इस क्लास के बारे में आपसे करनी थी कि नंबर 1, हाउ वी विल बी डीलिंग विद द एग्जाम्स. डेफिनेटली यस. सो डेफिनेटली यू विल हैव फाइनल एग्जाम as per the university rules, 50%. Midterm exam 20 to 30%. If it is 20, then sessional will become 30. And if the midterm is 30, then definitely the sessional will come to 20%. And that 20% will be again distributed among the project, home assignments,
and pop-up quizzes. क्या मतलब है जी पॉपअप? मुझे इतना अच्छी इंग्लिश तो आती नहीं है। ये पॉपअप क्विज का क्या मतलब है? सरप्राइज, नॉट अनाउंस्ड अर्लियर। तो दिस इज योर क्विजेस। एज फॉर एज दी, पहले हम याहू के ग्रुप बना देते थे, फिर बाद में गूगल के क्लासरूम बना देते थे। अब आप लोगों ने पहले से ही जो डीएसपी का ग्रुप था उसको डीसीएन कर दिया, और आप में से किसी ने किया, अच्छी बात है। और उसमें आपको ये रिसोर्सेज और सारी चीजें जैसे कि डीएसपी में था उसी तरह यहां पर भी होगा, तो फर्दर उसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हेयर जेंटलमैन, एकेडमिक ऑनेस्टी। अगेन इतनी ज्यादा मेरी अच्छी इंग्लिश नहीं है, एमएल जो है वो मेरी हेल्प करता होता है कभी कभी, ऑल्दो कि मुझे बड़ी आपसे सॉरी करनी चाहिए कि मैं मुसलमान को कह रहा हूं, यानी कि मैं सूरज को कह रहा हूं कि रोशनी, अपनी रोशनी के बारे में उसको बता रहा हूं कि रोशनी कैसे होनी चाहिए। मुसलमान को कह रहा हूं कि ऑनेस्ट हो जाओ। नहीं मुसलमानों, आपको क्या कह रहा हूं कि ऑनेस्ट हो जाओ, ईमानदार हो जाओ। ईमानदार को कह रहा हूं कि ईमानदार हो जाओ। जी जेंटलमैन, क्या ढूंढ रहे हो इससे? कोई नुस्खा है अबाउट दी ईमानदारी? तो पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है। चीटिंग इज नॉट अलाउड, इट मींस। आगे चलें जी। Students are found to have collaborated Excessively. or to have cheated, for example, by copying or sharing answer in assignments or quizzes. All involved will, at a minimum, receive grade of 0. Minimum 0. जी, ऑल इन्वॉल्व का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे जूम कर लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने असाइनमेंट की और वाई को प्रोवाइड कर दी। अब मुझे क्या पता कि एक्स ने उसमें चोर की है कि वाई ने की है? मुझे तो सिर्फ ये पता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला, आप कहेंगे दोनों जनती हैं, तो उन दोनों जनतियों को ये 0 दूंगा। और ये काम मैंने आपके साथ डीएसपी में भी किया है, सिर्फ आखिरी काम नहीं किया, वो इस बार करूंगा। अगली लाइन, आखिरी लाइन पढ़ो, ताकि ये काम अगली बार करना है, इस बार करना है। Further instructions will result in failure in the अगले साल फिर ब्याह मिला भी, मेहमान आपको अपना मेहमान बना लेंगे। इस बार भी ये किया है कि जिन्होंने चीट किया उनके मार्क्स नहीं लगाए। असाइनमेंट्स में चीटिंग हुई है, हमने भेजा है उन स्टूडेंट को कि जी आपकी चीटेड है और इससे चीटेड है। उन्होंने कहा ये कौन सा आपके पास इल्हामी तरीका है, लेकिन किया हमने वाकई इधर से ही है। हमने कहा ठीक है जी, आपने मान लिया, हम आपको सिर्फ 0 दे के और आपके साथ फर्दर नहीं कर रहे, लेकिन फिर अब नहीं, अब चीट किया तो नुकसान डबल होगा। क्लियर? चीटिंग नहीं होगी फिर। कहें जी ये बातें हमने कई दफा सुनी है। गलती से जब भी कोई चीज क्रिएटिव होती है कि ये काम करो, डेफिनेटली इट मे हैव अ डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट समथिंग, डेफिनेटली डिफरेंट। यही कह रहा हूं कि आपने अगर प्रिंटिंग वाले को भी कहना है कि जी मेरा ये आइटम आप अपने पास या तो सेव नहीं करोगे, और सेव करते हो तो उसको डिलीट कर दो, अगर ये कॉपी दूसरी के पास गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे ये नुकसान मिलेगा। तो नेक्स्ट थिंग इज नो मोबाइल्स ड्यूरिंग क्लास एंड ऑब्जर्व द क्लास timings, and probably something last, that what we'll be using, we might be using the book data computer communication by William Starling. We may be using the book,
Computer Networks top down approach by Ross, 8th edition. We may be using some topic computer networks, 5th semester by Larry Peterson. We may be using data communication and networking, 5th edition by Barrows. And a lot we will be using the resources from netacad.com. अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इन बुक्स, ये मैं कॉपी करता हूं, सेंड किया हुआ है, मैं फिर करता हूं, आप चेक कर लें कि ये किताब का स्टैंडर्ड दुनिया भर में कहां पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है फिर आपके लिए भी दुरुस्त है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, ये किताबें तो सिर्फ यूटी में इस्तेमाल होती हैं, बाकी तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर इसका मतलब है कि समथिंग अंडर स्टैंडर्ड। तो अगर यही किताबें और यही रिसोर्सेज, अभी उसने बताया आपको लास्ट वन का कि दुनिया में 12,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और इदारे मेरा रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं और कामयाब हैं, तो इसलिए हमने आपको भी ये दे दिया। तो और ये आपको रिसोर्सेज ग्रुप्स में भी दे दी जाएंगी, दे दी जाएंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था जस्ट पहली क्लास जिसमें आपको थोड़ा सा बूस्ट करना भी था। कई लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था कि जी बस उनको 5-6 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में लाइक सब दे देते हैं और खुश हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें ये क्यों मिला है, क्या इसकी रीजन है। तो अगली क्लास में आई विल बी स्टार्टिंग विद दी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सो नाउ आई विल बी आस्किंग, उठ जाए तो बेहतर है, तो एनी क्वेश्चन? जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी जेंटलमैन?